Hello engineers, good morning. Dangerous forms of lines are coming and we are towards end of this chapter. But slowly the difficult topic is coming. Equation of line in normal form. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंटरसेप्ट. अच्छा, एक इक्वेशन मुझे आपको एक्सप्लेन करना बाकी है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म वो मुझे देना बाकी है. सो टुडे आज मैं वो भी आपको दे दूंगा. बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल का मतलब होता है कि जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. हियर इट इज अवर लाइन. M is foot of perpendicular from the origin. So OM is called normal to this line. Ray OM is called normal to this line, which makes angle omega with positive x-axis. Which makes an angle omega with positive x-axis. This is our line. See, what is P? P is perpendicular distance from the origin of the line. P is perpendicular distance from the origin of the line. So P and omega are not element of our line. Still, they will be helpful to define the equation of our line. Therefore, this equation is also known as P omega equation. It is also known as P omega equation. कुछ बुक्स में आपको ओमेगा के बदले अल्फा भी मिल सकता है. सो एट दैट टाइम दे विल से पी अल्फा इक्वेशन, ऐसा बोलेंगे, राइट? सो इफ पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ लाइन एंड ओमेगा इज एन अल्फा formed by normal with positive x-axis. See, if P is perpendicular distance from origin of line and omega is an angle formed by normal with positive x-axis, then equation of line is omega is an angle of normal and P is perpendicular distance from origin of line. P and omega are not direct element of the line. They do not belongs to the line, but still they will be helpful to define the equation. The equation is x cos omega plus y sin omega is equal to P. where ये कंडीशन आप बराबर याद रखना, where ओमेगा belongs to close open 0 to 2 pi. because in this case मैंने जो लाइन बनाई है that is in first quadrant, कहीं भी हो सकती है, सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में. ओमेगा में बी एक्यूट एंगल, में बी ऑब्टूस एंगल, वो थर्ड क्वाड्रेंट का भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी हो सकता है. सो इट शुड बी क्लोज ओपन 0 to 2 पाई, बराबर याद रखना. तो ये जो इक्वेशन है विच इज ऑल्सो नोन एज पी ओमेगा इक्वेशन, विच इज also known as P omega equation. आप इसे P ओमेगा इक्वेशन से भी जान सकते हो. अच्छा, किसी लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है और अगर आपको बोल दे कि कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो कैसे करोगे? से इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको दे दिया.
2x और x प्लस √3y minus 2 equal to 0. It is ax plus by plus c equal to 0. Convert into normal form. तो ये कैसे करेंगे हम? What is omega and what is p? P is perpendicular distance from origin. What is omega? Omega is an angle formed by normal with positive x-axis. लाइन कुछ नहीं देने वाली है, जो कुछ भी देंगे वो P एंड ओमेगा देंगे. तो भाई P और ओमेगा को हमें पटाना पड़ेगा. जब तक वो हमें वैल्यू नहीं देगा, we can't convert this equation into the normal form. तो कैसे होगा? तो ये मेथड बराबर आप याद रख लेना कि कंपेयर इट विथ ax plus by plus c is equal to 0. By comparing with ax plus by equal to 0, a is 1, b is √3 एंड मैं यहाँ पे +2 कर रहा हूं, यानी आपको समझ में आएगा. c is 2, a is 1, b is √3 एंड c is 2. अब ये इक्वेशन को मुझे √a² plus b² से डिवाइड करना है. क्यों, वो अभी समझा रहा हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू निकालेंगे √a² plus b² की. √a² plus b² is √a² that is 1, b² is √3 means will be 3. So ये बना 2. Now divide equation by 2. Divide equation by 2. तो हमारा इक्वेशन बनेगा therefore 1/2x plus √3/2y plus 1 equal to 0. अब इसके साथ मुझे कंपेयर करना है. देन कांस्टेंट शुड बी इन द राइट हैंड साइड. कांस्टेंट राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तो मैंने 1 को राइट हैंड साइड में ले लिया. सो 1/2x plus √3/2y is equal to -1. But remember it, P is what? P is perpendicular distance from the origin and distance cannot be negative. तो मुझे इसे पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा. To make it positive, multiply whole equation by minus. Multiply whole equation by minus. So -1/2x minus √3/2y is equal to 1. Now we can compare with x cos omega plus y sin omega is equal to p. Therefore, see, cos omega is -1/2, which is less than 0. Sin omega is -√3/2, which is less than 0. Both are negative, so omega is in third quadrant. Therefore, omega is in third quadrant and P is 1. P is 1. If omega is in third quadrant, the value of cos is 1/2, sin की √3/2 है, तो at which angle they are giving 1/2 and √3/2? Obvious at pi/3. तो pi/3 तो आएगा ही, because pi/3 is the major angle, but it is of the third quadrant. तो third quadrant का pi/3 क्या होगा? See, pi/3 of first quadrant is pi/3. Pi/3 of second quadrant will be 2 pi/3. Pi/3 of third quadrant is 4 pi/3. So हमें requirement है 4 pi/3 की. Therefore omega will be 4 pi/3.
and therefore equation of line in normal form is x cos 4 pi by 3 x cos 4 pi by 3 plus y sin 4 pi by 3 is equal to 1। ये जो इक्वेशन है इसका जो फॉर्म है वो मैंने आपको दे दिया, x cos 4 pi by 3 plus y sin 4 pi by 3 is 1। It is like x cos omega plus y sin omega is equal to p। तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है and can be asked in the MCQ JEE एग्जाम। याद रखना इक्वेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जब तक आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमेशा आपको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? अगर डायरेक्ट हमने कंपेयर कर दिया होता कि cos अल्फा इज 1 sin अल्फा इज रूट 3, यू आर राइट, आपने शायद कर दिया, sin अल्फा की वैल्यू आपने रूट 3 ले ली, बट रूट 3 इज 1.7 एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ sin? The range of sin is closed interval -1 to 1. It gives always answer between -1 and 1। तो रूट 3 कैसे होगी? तो इसे रेंज में लाने के लिए इट इज पार्ट ऑफ द थियरी, जो प्रूफ है, जो डेरिवेशन है उसका वो पार्ट है, पर डिराइव तो हम कर नहीं रहे बिकॉज डायरेक्ट वी आर एक्सेप्टिंग दिस रिजल्ट। सो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि जब जब आपको इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बराबर याद रखना इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। क्लियर पॉइंट? डन। एक और इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। Distance of line EX from the origin is, किसी भी लाइन का ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो अभी एक शॉर्ट वे में आपको दे रहा हूं, थियरी आगे आने वाली है पर फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं अभी दे दूं। इफ इट इज लाइन विदाउट कन्वर्टिंग इन नॉर्मल फॉर्म वी कैन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द फॉर्मूला इज P is equal to, whenever line is ax plus b plus c equal to 0 form, so we can write mod c upon under root a square plus b square। देखो यहां पर भी अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे then you will get p is equal to 1। कैसे? अगर टी का फॉर्मूला में यही वैल्यू, चलो इसे, ये रही हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, कहां गई? C is 2, so mod 2 upon under root a square plus b square, that is 1 plus 3 is 2 upon 2 is 1। वही आने वाला है। Ways are different, destination is same। इसीलिए आपको ये फॉर्मूला भी याद रखनी है। आगे हम ये डिस्कस करेंगे ही पक्का, बट अभी मुझे ऐसा लगा कि ऑल दीज आर कोरिलेटेड टॉपिक, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। सो द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, और यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज मोड सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है, राइट? अच्छा, जो हमारी बात हुई थी कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, सो चलो वहीं पे आ जाओ कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म।
if line intersect x axis at a0 and y axis at 0b, then small a and small b will be the intercept. a will be x intercept, b will be y intercept. ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी है. सो व्हेन a and b are intercept of line, then इक्वेशन ऑफ लाइन, मुझे a b के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए. इफ लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस, if line intersect x axis at a0 and y axis at 0b, then a and b will be इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन. ये इंटरसेप्ट्स हो गए. ये डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी. सो इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन whose intercepts are A and B is x upon A plus y upon B is equal to 1. X upon A plus y upon B is equal to 1. Whenever the intercepts of line are A and B, we can use this formula. तो अब मैं ये बता दूं आपको कि भाई ए और बी जब तक डिनोमिनेटर में है, दे कैन नॉट बी जीरो. तो अगर जीरो हो गया तो सपोज अवर लाइन इज हॉरिजॉन्टल, इफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल इट कैन नॉट बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. मतलब हमें ये मिलेगा ही नहीं, बिकॉज लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस. अगर ए नहीं मिला तो ए अनडिफाइंड है, सो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला. इफ लाइन इज वर्टिकल, y intercept will not be defined, तो भी इक्वेशन. सो दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर नॉन वर्टिकल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर नॉन वर्टिकल and non-horizontal line. This is the condition. बराबर याद रखना. अब हल्की सी एक छोटी सी मैं आपको सम दे रहा हूं कि फाइंड इंटरसेप्ट्स, फाइंड intercepts of 2x plus 3y plus 5 equal to 0. भाई मैंने इक्वेशन दे दी आपको लाइन का और बोला कि आप इसके इंटरसेप्ट्स डिफाइन करो. तो एक तो जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूला दी थी, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन फाइंड द इंटरसेप्ट. सी x इंटरसेप्ट, उसकी फॉर्मूला थी माइनस सी बाई ए. सी व्हेन वी कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ax plus by plus c equal to 0, c is 5, so minus 5 by 2. y intercept is minus c by b will be minus 5 by 3. अब मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला अगर मुझे इंटरसेप्ट्स निकालने हो तो मैं ये लाइन को इससे कंपेयर करूंगा. टू कंपेयर विद दिस लाइन इट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट एंड शुड बी 1 ही होना चाहिए राइट हैंड साइड में. तो देखो कैसे होगा. सी इन अनदर वे वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द इंटरसेप्ट्स.
here 2x plus 3y, therefore 2x plus 3y equal to -5, but the constant should be +1। यहां पे +1 बनाने के लिए डिवाइड होल इक्वेशन बाय -5। So it will be 2x upon -5 plus 3y upon -5, but the coefficient of x and y should be 1 whenever we want to compare with this। तो मुझे x और y के कोएफिशिएंट 1 बनाने हैं, तो 2 को मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर। सो x upon -5/2 plus y upon -5/3 equal to 1। So compare with this equation, a is -5/2, b is -5/3, means x intercept is -5/2 and y intercept is -5/3। कितना इजी हो गया। तो आज के ये इक्वेशन हमारे सारे इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना, एक बार आप लिख लो ताकि हम सम्स करें। आ जाओ बेटा एक्सरसाइज 10.2 में। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइंस लाने हैं वेरियस फॉर्म से, बराबर अलग अलग वे में हमें इक्वेशंस निकालने हैं। जो डेटा दिया होगा उस हिसाब से वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ द लाइन, राइट। चलो फर्स्ट इज इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। भाई इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस वी कांट डिराइव, वो हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन के लिए आगे और कुछ होना चाहिए, जबकि हमने ऑलरेडी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो क्या होगा, सो बाय डायग्राम आई एम शोइंग यू दैट, सी बाय इट्स ओन प्रॉपर्टी see it is x axis and it is y axis, right। what is the property for x axis? on x axis the y coordinate is 0। अगर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, then address for that point will be x axis। अगर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, so the address for that point will be x axis। ये आपको याद होना चाहिए, मतलब याद रखना ही पड़ेगा। and if the x coordinate of any point is 0, it will be on y axis। so directly we can write equation of x axis is y equal to 0, because y equal to 0 is the characteristic for the x axis, it is the main property। and equation of y axis is x equal to 0, because x coordinate of all the point for y axis will be 0। तो एकदम इजी आपको याद रखना है कि अगर x 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, it will be on y axis। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, will be on x axis। so these are the equation of एक्सिस। अगर कोई मुझे ऐसा पूछे कि सर आपने ये लिखा तो सही, पर हमारा जो जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या ये भी लाइन है, तो क्या हम इसे भी उसमें कन्वर्ट कर सकेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल वी कैन राइट। सी अगर मुझे इसे इस फॉर्म में लिखना है, सो विल राइट 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। इट इज लाइक ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। चलो इसे भी लिखो, सो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। आप किसी भी वर्ल्ड की लाइन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में
लिख पाओगे, याद रखना, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, पासिंग थ्रू -4 3 विथ स्लोप 1/2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। देखो भाई क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट है और एक स्लोप है, और पॉइंट स्लोप फॉर्मूला तो हमारे पास है। आप पॉइंट स्लोप फॉर्मूला बोलो या स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, तो इक्वेशन ऑफ लाइन is y minus y1 is equal to m। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आपकी तो है ही आपके पास, सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है। चलो, it passing through -4 3, so in place of x1 y1 we will write -4 and 3, and slope is 1/2, so by putting all the values, see y minus y1 is 3 is equal to m is 1/2 into x minus -4 means +4, multiply to opposite side, so it will be 2y minus x equal to x plus 4। अब सब कुछ सामने ले जाओ और फिर पूरे इक्वेशन का डायरेक्शन चेंज करके लिखो, तो x is in RHS, so remain plus, 2y गया सामने सो होगा माइनस, 6 भी गया सामने सो होगा प्लस, +6 + 4 will be 10 equal to 0, which is our required equation. Slope is 1/2 and which passing through -4 3। आपको चेक या वेरीफाई करना हो तो आप कर सकते हो। देखो स्लोप इज -1/2, माइनस a अपॉन b के हिसाब से -1 अपॉन -2 दैट इज 1/2, एंड -4 3 के कोऑर्डिनेट रखो, -4 and 3, -4 -6 -10 + 10 0, यस इसे सेटिस्फाई कर रहा है, सो इजीली। अब यही सम ये हो गया, देखो पासिंग थ्रू 0 0 एंड स्लोप इज m, ठीक है इक्वेशन। चलो y minus y1 is equal to m into x minus x1, putting all the values, y minus 0, m is m, x1 is 0। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो देन इट विल बी y is equal to mx। अगर आप इसे ये फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो x plus by plus c equal to 0। c यहाँ पे 0 है, क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the line passing through 2,2√3 and inclined with the x-axis at an angle 75 degree। by 75 degree होगा obtuse angle, right? sorry acute angle, acute angle है, then it will make acute angle with positive x-axis। तो आपकी लाइन कैसी होगी, आपकी लाइन ऐसी होगी, सी। also this point is in first quadrant, so line will be like this, it is 75 and point 2,2√3 is the point of this line। तो हमारे पास पॉइंट तो है, पॉइंट है, अगर हमें स्लोप मिल जाए तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्मूला we can find an equation of line। स्लोप मिल सकता है by which theory? if alpha is an angle made by line with positive x-axis then tan alpha will be the slope। मतलब अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपका एंगल है देन वैल्यू ऑफ टेंजेंट फॉर दैट एंगल विल बी द स्लोप। तो देखो यहां पे कितना इजी सम हो गया, हियर slope of line is m is equal to tan 75। पर 75 के लिए हमारे पास वैल्यू नहीं है, वो हमें डिराइव करनी पड़ेगी, बट वी हैव द वे टू डिराइव द वैल्यू। कैसे डिराइव करेंगे, देखो 75 को मैं कन्वर्ट करूंगा, स्प्लिट करूंगा जो नोन एंगल्स है उसमें,
तो 45 प्लस 30 बोथ आर नोन एंगल और उनकी वैल्यू हमारे पास है और ये 75 हो गया. नाउ बाय फॉर्मूला ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा into tan beta. चलो what is value of tan 45? 1 plus tan 30 is 1 upon root 3 upon 1 minus 1 into 1 upon root 3. After taking root 3 LCM, the slope will be m is equal to, see, root 3 plus 1 upon root 3 minus 1, ऊपर नीचे सेम एलसीएम की वजह से कटेगा. सो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, इट इज स्लोप. पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन, तो पॉइंट है और स्लोप आ गया. बाय पॉइंट स्लोप फॉर्मूला वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन is y minus y1 is equal to m into x minus x1. So y minus 2 root 3 is m. M is root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 into x minus x1, that is 2. Now you can simplify this after taking LCM because you are master for the simplification. आप सिंप्लीफाई करने में अभी मास्टर हो गए हो, इसीलिए ये सिंप्लीफाई का काम मैं आज आपको देने वाला हूं. सो प्लीज आप इसे सिंप्लीफाई कर देना. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. देखो क्वेश्चन समझना है बराबर, अदरवाइज रॉन्ग होगा आपका आंसर. इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस इक्वेशन, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने सब जगह. इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन. कैसे होगा ये? एंड विथ स्लोप -2. देखो स्लोप -2 है, स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप नेगेटिव है तो लाइन का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा दैट विल बी ऑब्ट्यूस एंगल. तो आपको अगर डायग्राम बनाना हो तो इस तरह से बनेगा. सी, लाइन इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस at the distance of 3 units from the origin to the left with slope -2. मतलब हमारा काम ऐसा होगा, कैसा हो, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है. सो दिस एंगल शुड बी द ऑब्ट्यूस एंगल. और ये डिस्टेंस 3 यूनिट है. ड्यू टू दिस लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -30. तो देखो आपके पास स्लोप तो था ही, पॉइंट आपको मिल गया. पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. इफ लाइन इंटरसेक्ट, देखो यहां से कंडीशनल बात होगी. इफ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस axis at a distance of 3 units to the left of origin then it will intersect x axis at -30.
ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मिल गया, एंड स्लोप इज -2। कितना इजी हो गया। सो वे हैव पॉइंट एंड स्लोप, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन is y minus y1 is equal to m into x minus x1। भाई अभी सिंप्लीफाई के तो आप बादशाह हो, आप ही सिंप्लीफाई करते रहना, मैं करने वाला नहीं हूं। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 6। Our line intersect y-axis at distance of 2 units above the origin and making an angle of the 30 degree with positive x-axis। तो सबसे पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे। से हमारी जो लाइन है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ऑल्सो इट इज इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट डिस्टेंस 2 यूनिट from the origin above side। मतलब our line will be like this, ये 30 डिग्री है, should be acute angle। also it is intersecting y axis यहाँ पे, तो the intersect coordinates of intersecting point will be 0 2। तो देखो अब दोनों चीज आपको मिल गई, पॉइंट मिल गया, स्लोप अभी बनाना है, राइट। If line intersect y-axis, if line intersect y-axis at a distance of 2 units above the origin, then line will intersect y-axis at 0 2। अगर ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, so the intersecting point will be 0 2। also slope of line will be m equal to c। it makes an angle 30 degree with positive x-axis and its value of tangent will be slope, so tan 30 and that is 1 upon root 3। ये आपको पता तो है। so now we have slope and point both, therefore equation of line is y minus y1 is m into, देखो सारे सम्स में आप देखो हर जगह मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज की हुई है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने ये इक्वेशन करवाया था तब भी आपको बताया था कि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और आज आपने देख लिया कि शुरुआत में ही ये हाल है, राइट। देयरफॉर y minus y1 means 2 is equal to m into 1 upon root 3 into x minus x1। अब ये तो आपका बनता ही है, क्योंकि ये करोगे तो मिलेगा जिंगो आंसर। कितना इजी हो गया बेटा। सो आज हम 6 सम्स तक रखते हुए नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 7th सम, क्योंकि थियरीज ज्यादा है, लर्न करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो तब तक के लिए से यू, बाय बाय, टाटा।